So in this video we are going to talk about major failure sequential operation of SIV, or we can also say SIV major fault, APS major fault, right? So in my last video I discussed about APS minor fault, or I can say SIV minor fault, and how SIV is resetted and what is the sequential operation after resetting of SIV, right? So we have discussed about all this thing, and we also discussed like what is the causes of the SIV minor fault, APS minor fault, right? So what are the reason behind the minor fault? As we have discussed, first of all, improper synchronization between components, improper synchronization, or can say improper communication between components. Like for example, if the communication between IGBTs are not is not happening properly, then what is the cause behind improper communication? Like for example, due to just because of improper cooling, fans are not working properly due to dust and dirt. So this can be the reason behind improper synchronization, or can say improper communication between components, improper cooling among components. Apart from that, dust and dirt in APS module, right? So these are the some reasons behind APS minor fault. But what are the causes of APS SIV major fault? Major component failure. If there is failure in major component, like in contactors, auxiliary contactor, main contactor, then APS major fault may occur. Major component not working for time being. For the time being, if major components are not working, like for example, just consider this example to understand the concept. Main contactor, main contactor is not working just for the duration of 4 to 5 seconds. So in such cases, major failure may occur, right? So major component may not working for the time being, or can say major component failure. So this can be the reason behind APS major fault, right? So whenever we are starting the SIV, whenever we are turning on the train, then SIV gets resetted for some time, राइट तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, SIV पहला रीसेट होगा 1 सेकंड के लिए आफ्टर रिसीविंग कंट्रोल पावर सप्लाई. जब ट्रेन को ऑन करेंगे तो ऐसे केस में स्टार्टिंग में जब जैसे ही हमारा कोई भी कंपोनेंट स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, रीसेट होता है. तो जो SIV होगा वो क्या होगा, वो रीसेट होगा आफ्टर रिसीविंग कंट्रोल पावर सप्लाई. जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो है उसमें ऑन सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा. कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा. व्हेन कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज रीचेज मोर देन 300 वोल्ट, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑफ सिग्नल चले जाएगा. और जो मेन कॉन्टैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन सिग्नल ऑन हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑन सिग्नल चले जाएगा बाय रिसीविंग ऑन सिग्नल, राइट. So we have written over here when auxiliary contactor, IVK2 stands for auxiliary contactor and IVK1 stands for main contactor, right. So what we have written so far, SIV first reset for 1 second after receiving control power supply. Auxiliary contactor on signal is fired. Converter output voltage starts increasing. When converter output voltage goes more than 300 volt DC, auxiliary contactor get turned off and main contactor gets turned on by receiving on signal. When output voltage of converter become greater than, when the output voltage reaches more than 600 volt DC, then inverter on signal is fired for 1 second, due to which inverter module starts to work and 3-phase AC voltage starts to appear at the output side of the inverter. After some time, SIV contactor will operate, due to which 3-phase load will start to receive power from the 3-phase inverter. So this is the starting sequence of the SIV, right? So this is the starting sequence of the SIV. Now starting operation of SIV, this is the starting operation of SIV about which we have already discussed. Now when major failure occur, जब भी major failure occur होगा तो ऐसे केस में जो SIV ये starting operation को क्या कर देगा, रोक देगा. स्टार्टिंग ऑपरेशन को रोक देगा तो सारे कमांड्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे. सारे कमांड्स ज़ीरो हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने बात किया था, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि इनपुट वोल्टेज कमांड हो गया, इनपुट करंट कमांड हो गया, राइट, आउटपुट वोल्टेज कमांड हो गया. बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली जो कमांड जो कंसिडर करना है, सारे कमांड जीरो हो जाएंगे. मतलब जो ऑन सिग्नल वाले जो कमांड जो जा रहे हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में जो ऑन सिग्नल वाला जो कमांड जाएगा वो जीरो हो जाएगा. मेन कॉन्टैक्टर में जो ऑन सिग्नल वाला जो कमांड जाएगा वो जीरो हो जाएगा. कन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो जाएगा. इन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो जाएगा. अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सारी चीज़ ये सारी चीज़ कर कौन रहा है. जैसे कि इससे पहले भी हमने बात किया था, APS मेजर फॉल्ट ये कौन सेंस करेगा, CPU सेंस करेगा. APS माइनर फॉल्ट ये कौन सेंस करेगा, CPU सेंस करेगा. CPU सेंस करेगा मतलब हमारा A गेट कार्ड सेंस करेगा. जैसे कि अगर हम लोग देखें इससे पहले जो CRRC की जो ट्रेन थी उसमें
CPU मॉड्यूल लगा होता था हमारे मतलब SIV में, बट यहाँ पर ये बेसिकली एल्स्टॉम की ट्रेन में A-गेट कार्ड होता है। ये देखो, अगर हम लोग इसको फंडामेंटल लेवल पर अगर कुछ कंसिडर करें ना, इफ़ यू डोंट मेक दी थिंग्स कॉम्प्लेक्स देन थिंग्स आर वेरी सिंपल। See, each and everything is being controlled with the help of the 16-bit microprocessor, which is nothing known as CPU, राइट। अभी वो CPU को अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं, A-गेट हो गया या फिर मेन कंट्रोलर हो गया, राइट। तो A-गेट और कैन से CPU, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो CPU होगा सारे कमांड सारे सिग्नल को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, राइट, जब तक कि पहला वाला मेजर फेलियर ऑटो रिसेट नहीं हो जाता, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने SIV को ऑन किया, SIV ऑन होने के बाद हुआ क्या, जो मेजर फेलियर है वो सेंस हो गया, मेजर फेलियर सेंस हो गया, तो ऐसे केस में होगा कि ये सारा जो मतलब जो सिग्नल्स हो गए, सारे जो कमांड्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, जब तक कि पहला मेजर फेलियर चला ना जाए, राइट। until first major failure is auto reset, because just hold on, if first major failure is auto reset then normal operation of SIV will get resume। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जैसे ही हमें मेजर फेलियर मिलेगा, फर्स्ट मेजर फेलियर मिला CPU को, फर्स्ट मेजर फेलियर मिला, तो ऐसे केस में होगा कि सारे जो कमांड हो गए वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। सारे कमांड तब तक के ज़ीरो हो जाएंगे जब तक कि ये मेजर फेलियर ऑटो रिसेट नहीं हो जाए, राइट। जैसे ही ये मेजर फेलियर ऑटो रिसेट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो SIV का जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। जैसे ही मेजर फेलियर ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, ये सारे जो मतलब सारा जो प्रोसेस है ये फिर से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा और जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, राइट। When first major failure is being auto reset, at the same time if second major failure occur then SIV operation is locked off, right। पहला मेजर फेलियर ऑटो रिसेट हो रहा था और एट द सेम टाइम सेकंड मेजर फेलियर आ गया, ऐसे केस में होगा कि वो जो SIV वो लॉक्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब जो SIV वो कट आउट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। माइनर फेलियर में हम लोग बोल रहे थे कट आउट होगा, माइनर फेलियर में कट आउट के बहुत लेस चांसेस है। माइनर फेलियर अगर आता है तो इसके बाद भी ट्रेन को मिल लाइन पे लेके जाया जाता है, बट मेजर फेलियर अगर आ रहा है, पहला मेजर फेलियर ऑटो रिसेट होने के बाद SIV अगर हम लोग देखें सेल्फ ऑटो रिसेट होता है और हम लोग मैनुअली भी ऑटो रिसेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्ट कमांड थ्रू TCMS, राइट। सेल्फ ऑटो रिसेट हुआ और हमने सॉफ्ट कमांड भी दिया, राइट। सेल्फ ऑटो रिसेट होने के बाद मान लेते हैं मेजर फेलियर नहीं जा रहा है, हमने सॉफ्ट कमांड दिया TCMS के थ्रू, मेजर फेलियर चले गया, नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हो गया, तो ट्रेन को हम लोग सर्विस के लिए लेके जा सकते हैं। बट सॉफ्ट कमांड देने के बाद भी अगर ये मेजर फेलियर अगर आ रहा है और ट्रेन को जब तक के मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन अगर हमारी डिपो में, तो ऐसे कि इसमें ट्रेन को होल्ड करना पड़ सकता है, बट ट्रेन अगर मेन लाइन पे, तो ऐसे कि इसमें अगर वो मेजर फेलियर जा नहीं रहा है तो बाकी दो APS के थ्रू हमारा पूरा सिस्टम चलेगा और ट्रेन को मतलब विड्रॉ करके हमें लेके आना होगा हमारे वर्क डिपो में। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो CPU होगा वो क्या करेगा, सारे कमांड सारे सिग्नल को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा जब तक ये मेजर फेलियर ऑटो रिसेट नहीं हो जाता। ये मेजर फेलियर जैसे ऑटो रिसेट हो जाएगा तो ऐसे केस में SIV का नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हो जाएगा। बट मान लेते हैं दिस मेजर फेलियर इज बीइंग ऑटो रिसेट बट एट द सेम टाइम सेकंड मेजर फेलियर अपीयर। इफ सेकंड मेजर फेलियर इज अपीयरिंग, अगर सेकंड मेजर फेलियर अगर बीच में आ जाता है तो ऐसे केस में हुआ क्या, SIV जो है वो लॉक्ड ऑफ हो जाएगा। तो यही था SIV के मेजर फेलियर के बारे में, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर ये देखा, जब भी SIV को ऑन करते हैं तो SIV सेल्फ रिसेट होता है, जिसमें होता क्या है, जो स्टार्टिंग जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूट, सेल्फ रिसेट होने के बाद जो स्टार्टिंग ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होने लगता है, राइट। और एग्जीक्यूट होने के टाइम स्टार्टिंग जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होने लगता है और स्टार्टिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के टाइम अगर कोई मेजर फेलियर अगर आ जाता है तो ऐसे केस में होता है क्या, सारे जो कमांड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। सारे कमांड ज़ीरो हो जाते हैं, इसका मतलब वो जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है और जो मेजर फेलियर है वो रिसेट होता है। मेजर फेलियर रिसेट अगर हो जाएगा तो ऐसे केस में जो SIV है उसका नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हो जाएगा। नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हुआ, इसका मतलब जो स्टार्टिंग प्रोसेस है फिर से मतलब रिपीट होना चालू हो जाएगा और SIV पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। बट मेजर फेलियर आ रहा है और वो मेजर फेलियर के साथ अगर कोई एक सेकंड मेजर फेलियर भी आ गया तो ऐसे केस में जो SIV होगा लॉक्ड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो CPU होता है हमारा,
जो माइनर फेलियर और मेजर फेलियर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सीपीयू ये माइनर फेलियर सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा होता है हर 90 सेकंड में, बट ये जो मेजर फेलियर सिग्नल है इसे हर 60 सेकंड में डिटेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजर फेलियर सिग्नल है इसे सीपीयू हर 60 सेकंड में सेंस कर रहा होता है, और जो माइनर फेलियर सिग्नल है उसको सीपीयू हर 90 सेकंड में सेंस कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर फेलियर सिग्नल को जो सीपीयू है वो हर 90 सेकंड में सेंस कर रहा होता है, और मेजर फेलियर सिग्नल को सीपीयू हर 60 सेकंड में सेंस कर रहा होता है।